अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي من يوم النهر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه ليأتي بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم ليقع بمكان قبل أن تقع على الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس على كل يوم على كل عام أضحية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمین. گرامی قدر و واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1443 یعنی 43 اسلامی سال کا اشہر حرم میں کا سب سے بڑا مہینہ ذی الحجۃ الحرام کی آج پہلی تاریخ ہے. پچھلی جمعہ میں ذکر کر دیا تھا کہ جمعرات کو چاند دیکھنا ہے. اگر چاند ثابت ہو جائے تو جمعہ کو پہلی تاریخ ہوگی. اگرچہ گجرات بھر میں صرف کچھ کے علاقے میں آسمان صاف تھا، چاند نظر آیا. باقی گجرات بھر میں کسی جگہ بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آ سکا تھا. ان کی رویت پر اور ملک کے دیگر صوبوں کی رویت پر شہادت حاصل کر کے گجرات میں اور پورے ہندوستان میں آج پہلی ذی الحج کا اعلان کر دیا. اس حساب سے 10 ذی الحجۃ الحرام یعنی قربانی کا دن آئندہ جمعہ کے بعد آنے والی سنیچر کے بعد اتوار کو پہلا دن 10 ذی الحجہ کا پڑے گا. تو سن ہجری 1443 اسلامی سال کا اشہر حرم میں کا عظیم ترین ذی الحجہ کی آج پہلی تاریخ ہے. سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے فرزند حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ، اور اس خاندان کی عظیم قربانیوں کی 2 زندہ جاوید یادیں ہر سال بنائی جاتی ہے. ایک کو کہتے ہیں قربانی
اور ایک کو کہا جاتا ہے حج۔ توحید کے مؤسس اعظم خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مقدس کی 114 سورتوں میں سے 25 سورتوں میں ہے۔ مین اجمال میں ابراہیم علیہ السلام کے بابت 3 باتیں کہی۔ توحید کا مؤسس اعظم، سارے انبیاء توحید کا پیغام دنیا میں عام کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا مؤسس اعظم قرار دیا، خلیل اللہ قرار دیا، اور قرآن کریم کی 25 سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ملتا ہے، اور ان کی زندگی کی 2 عظیم یادیں سال میں 2 مرتبہ منائی جاتی ہیں، جو ایک معجزاتی حیثیت رکھتی ہیں اور اس کے معجزے کی یاد منائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 امتحانات ہوئی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور 5 امتحانات میں کامیابی اللہ نے بیان کی۔ کل سینو گڑھ مدرسے میں سیرت ابراہیم علیہ السلام پر طلبہ عزیز کے درمیان میں ایک جلسے کا پروگرام رکھا گیا، جس میں 12 طلبہ نے 9 ٹاپک پر عظیم ترین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بیان کی، جو واٹس ایپ میں پروگرام شائع ہے، سننے کے قابل ہے۔ پہلے اعلان دیا گیا 24 طلبہ تھے، ان میں سے 13 منتخب ہوئے، اور ان 13 میں سے 13 طلبہ نے 5 طلبہ اول نمبر پر آئے، 4 طالب علم دوسرے نمبر پر آئے، ایک تیسرے نمبر پر فائز ہوا۔ توحید کے مؤسس آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلت کے لیے پسند کیا اور اعلان کیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو اللہ نے دوست بنایا۔ ایک روایت ہے لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا أَحَدًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ اتفاق سے یاد آ گیا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ اللہ کا نبی، کل کائنات کا خلاصہ، ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا أَحَدًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ اللہ نے تو ابراہیم کو خلیل بنایا، دوست۔ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا، نبی نے فرمایا، لیکن میری خلت اللہ سے ہے، لہذا میں اللہ سے محبت کا دعویٰ دائر کروں اور ابو بکر سے بھی محبت کا دعویٰ کروں تو میں اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا، اس لیے کہ دل ایک ہے اور اس میں 2 محبتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ بڑا عجیب علمی نکتہ یاد آیا، میں نے ذکر کیا، دل ایک ہے، اس میں 2 محبتیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ کی محبت ہے تو ما سوى اللہ کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے نبی فرماتا ہے اگر میں یوں کہوں کہ ابو بکر میرا خلیل ہے، یہ نہیں کہہ سکتا، میرا دل تو چاہتا تھا کہ ابو بکر کو دوست بنا لوں، لیکن میں یہ دعویٰ دائر کروں تو دل ایک ہے، اللہ کی محبت اس میں جمع ہو تو نبی کی محبت، تو ابو بکر کی محبت اس میں جمع نہیں ہو سکتی، میری خلت اللہ سے قائم ہے۔ تو توحید کے مؤسس اعظم تھے، خلیل اللہ تھے، 5 امتحانات میں کامیابی حاصل کی، اس پر اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے وہ نامساعد حالات سے حضرت ابراہیم کو سامنا کرنا پڑا، اور باپ کھلی دھمکی دے رہا ہے میں تجھے اپنے شہر سے نکال دوں گا، اور نکال بھی دیا۔
बाबुल इराक से हिजरत करके शाम चले गए, शाम से हिजरत करके हिजाज गए। हिजाज में अकलुते लगते जिगर इस्माइल को छोड़ा, हाजरा को छोड़ा, चंद खजूरें और पानी का मशकीगा, और अल्लाह के हुक्म पर फिर हिजाज से शाम चले गए। तफसीली वाक़या हजरत इब्राहीम के बेटे इस्माइल की कुर्बानी का आइंदा जिक्र करेंगे। आज की जुमाअतुल मुबारक में सिर्फ हमें हजरत इब्राहीम के कद्र व मंजिलत और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक अमल, कुर्बानी की हकीकत, कुर्बानी के फजाइल, कुर्बानी के मसाइल और कुर्बानी के अहकाम पर बात करेंगे। तो तौहीद के मुअस्सिस आज़म थे, अल्लाह के खलील थे, इनकी पीठ से 4001 पैगंबर पैदा हुए। एक सिलसिला बेटे इसहाक से चला जिनमें 4000 पैगंबर हुए, और एक सिलसिला हाजरा के बतन से इस्माइल हुए, और इस्माइल की पुश्त में एक पैगंबर आए, वो खातिबुल अंबिया वल मुरसलीन आकाए मक्की मदनी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत इब्राहीम के माबद तीसरी बात, सिलसिलाए बनु इसराइल के अंबिया और अंबियाए बनु इस्माइल की पुश्त इब्राहीम है। अंबियाए बनु इसराइल और अंबियाए बनु इस्माइल की पुश्त 4001 पैगंबर का बाप हजरत इब्राहीम है खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस कदर आली कदर मंजिलत की मालिक जात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी, जिनको अबुल अंबिया कहा गया। आदम सारे इंसानों के बाप और हजरत इब्राहीम अंबिया के बाप करार दिए गए। इनका जिक्र खैर हम सुनते हैं। मैंने कुरान करीम की सूरह कौसर आपकी खिदमत में पेश की। इसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, ऐ नबी जी, हमने आपको कौसर अता फरमाई, इसके शुक्राने में आप नमाज पढ़िए जो इबादत बदनिया की असल है। आप कुर्बानी कीजिए जो इबादत मालिया की असल है। बेशक आपका दुश्मन ही नामुराद और मक़तूउन नस्ल हो जाएगा। ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को आलम इस्लाम में मुसलमाना ने आलम एक अजीम तरीन अमल कुर्बानी का करते हैं। कुर्बानी किसे कहते हैं? मा यतक़र्रब बिहिल अब्दु इलल्लाहि तआला फहुव कुर्बानियुन। हर वो अमल जिससे आदमी अल्लाह की नजदीकी हासिल करे, इसको कुर्बानी कहते हैं। हर वो अमल जिससे आदमी अल्लाह की नजदीकी हासिल करे, कुर्बत हासिल करे, इसको कुर्बानी कहा जाता है। जैसे अस्सलातु कुर्बानुन लिकुल्लि तक़िय्यिन। हर मुत्तकी इंसान नमाज से अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। लिहाजा जो नमाजी नहीं वो मुत्तकी नहीं, जो मुत्तकी है वो नमाजी है। इसलिए कि नमाज के बगैर तकवा हासिल नहीं हो सकता, और तकवे के बगैर खुदा का कुर्ब नसीब नहीं हो सकता। मन राह फी साअतिल ऊला कअन्नमा क़र्रब बदनतन। जुमा के दिन नमाजी जुमा के लिए पहले नंबर पर जो मस्जिद में आ गया, उसको इतना बड़ा सवाब मिल गया कि एक ऊंट खरीद कर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया। ला यज़ालुल अब्दु यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल। फर्ज नमाजों को छोड़कर तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अव्वाबीन के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। जो आदमी अल्लाह के करीब होना चाहता है, पहुंचा हुआ इंसान बनना चाहता है, तो 5 फर्ज नमाजों के अलावा इसकी पाबंदी के साथ साथ 4 नफल नमाज भी पढ़नी चाहिए। तहज्जुद, इशराक, चाश्त और अव्वाबीन, इन नमाजों का भी एहतमाम करना चाहिए। कुर्बानी हर कौम और मजहब में रही है। अल्लाह ताला शानहु फरमाते हैं, इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र कज़ालिका यज्ज़िल्लाहुल मुतसद्दिक़ीन।
आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक का नाम हाबिल था, एक का नाम काबिल था। एक मसले में इख्तिलाफ पैदा हुआ, दोनों से कुर्बानी का मुतालबा किया। एक ने खेतियों की चंद बालियां पेश की जिसमें बाजरे के डूंडे, मकाई के भुट्टे, जवार के डूंडे, ये सब जमा किया, और एक ने जानवर की कुर्बानी पेश की। उस जमाने में कुर्बानी इस्तेमाल नहीं हो सकती थी। जो चीज कुर्बान करनी है उसको अपनी मिल्कियत से निकाल कर एक जगह मैदान में जमा कर दो। आसमान से आग आती थी, उसको खा जाती थी। जिसको आसमान की आग खा ले वो कुर्बानी कबूल, और जिसको आसमान की आग न छूवे वो कुर्बानी मरदूद। हाबिल की कबूल हो गई, काबिल की कबूल नहीं हुई। काबिल ने अपनी कुर्बानी जब कबूल नहीं हुई और भाई की कबूल हुई, भाई की कबूलियत भी देख नहीं सका। इसलिए मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई की मकबूलियत देख नहीं सकेगा कयामत तक, गैर की मकबूलियत देख सकेगा। चूंकि आदम की नस्ल से पैदा होने वाले दो बेटे, इनमें सगे भाई की मकबूलियत सगा भाई नहीं देख सका। फक़तलहु फ़अस्बह मिनन नादिमीन। काबिल जरा होशियार किस्म का एडवांस था, उसने देखा कि मेरा तो फजीता हो गया, इसकी कबूल हुई मेरी कबूल नहीं हुई, भाई को कत्ल कर दिया, मार डाला। फ़अस्बह मिनन नादिमीन। अब कत्ल के बाद पछतावा हुआ, इसलिए गुनाह करने के बाद पछतावा होता है। पहले कितना ही समझाओ मत करो तो मानेगा नहीं। फ़क़तलहु फ़अस्बह मिनन नादिमीन। लेकिन रूए जमीन पर पहला कत्ल हुआ था। अभी तक जमीन में कब्र नहीं थी, कोई मराज नहीं था, कब्र कैसे दी जाए। फ़बअथल्लाहु ग़ुराबन यबहथु तुराबा। कत्ल करने के बाद अपने गाल पर हाथ रखकर पशेमान होकर के बैठा काबिल, करे क्या। ये रूए जमीन पर पहला कत्ल है जो हसद की बुनियाद पर हुआ। लेकिन कत्ल के बाद अब करने का क्या वो पता नहीं था। अल्लाह ने आसमान से कौवा भेजा, फ़बअथल्लाहु ग़ुराबन, कुरान में यबहसु तुराबन, और कौवे ने चोंच से जमीन खोरे दी। वो बैठा बैठा काबिल माइन डोलाता है कि इस तरह जमीन में खादा करके इसको रफे दफे करो। गोया कि इंसान को कब्र देना खुदा ने कौवे से सिखाया, और तब से कब्र का सिलसिला दुनिया में शुरू हुआ। उससे पहले कब्र थी नहीं, कोई मराज नहीं था। दो सगे भाई, एक मां के बतन से पैदा होने वाले और आदम की औलाद, इसलिए आदमी से ये सारी चीजें सादिर हो, ये कोई मुस्तबाद नहीं है, होता रहता है। ये सिलसिला खुदा ने इसी तरह चलाया है, इस पर गम और गुस्सा नहीं होना चाहिए। खैर, कुर्बानी उस वक्त भी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, इन्होंने जानवरों की कुर्बानी की थी। हजरत ईसा के टाइम में कुर्बानी का रिवाज था। अलबत्ता कोई, कुरान में अल्लाह फरमाता है वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका। हर कौम, हर मजहब, हर गिरोह कुर्बानी करता है, और कुर्बानी के बगैर कभी आदमी अल्लाह का मकबूल नहीं बन सकता। कुर्बानी का रिवाज है, अलबत्ता नाम का फर्क है। कोई नरवान कहता है, कोई बलिदान कहता है, कोई न्यास कहता है, कोई नजर कहता है, कोई भेंट कहता है, नाम अलग अलग है, लेकिन मकसूद सबका एक है। न्याज जो आदमी करता है वो भी कुर्बानी है, बलिदान जो देता है वो भी कुर्बानी है। हजारों सैनिक अपने मुल्क की इज्जत को दोबारा करने के लिए फिदा हो जाते हैं, जामे शहादत नोश करते हैं, रात दिन का मसला है। इंसान के लिए हैवानात, जमादात, नबातात रोजाना अपनी कुर्बानी दे देते हैं। इंसान के जानवरों के लिए चारा काट कर उसको खिलाया जाता है, और इंसान जब जरूरत पड़ती है तो अपनी जान की कुर्बानी अल्लाह के लिए दे देना, इसको सबसे बड़ी सआदत समझता है। तो कुर्बानी हर कौम और मजहब में रखी है,
اور اس کا رواج ہے. البتہ صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج مہینے کی 10 تاریخ کو ہم جو جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایسے ابھی چند دن پہلے ایک آدمی نے سوال کیا تھا کہ جانوروں کی قربانی کیوں ہوتی ہے. یہی روایت میں نے پڑھ کر سنائی. صحابہ نے بھی پوچھا تھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، جانور کی قربانی کا مطلب کیا؟ وہ یوں کہہ رہے تھے کہ یہ تو سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے. میں نے سمجھایا دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل الگ چیز ہے، لیکن قربانی تو پہلے سے اللہ نے حکم دیا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جانوروں کو اللہ کے یہاں قرب حاصل کرنے کے لیے نذرانے میں پیش کرنا یہ اللہ کا فیصلہ ہے. خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ نے پوچھا وما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم کی سنت زندہ کریں گے ہم کو کیا ملے گا؟ کہا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، بعض جانور جیسے مینڈھا، جیسے گھیٹا، اس کے جسم پر تو اون ہوتا ہے اور اون میں تو روے ہوتی ہے، اما الصوف فیہا یا رسول اللہ قال بکل صوف من شعرۃ حسنہ، اون کے ہر رو کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. قربانی کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل اپنے جانور کے خون بہانے سے زیادہ اللہ کے یہاں پیارا نہیں. جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی اللہ مغفرت کر دیتے ہیں. جانور کے اون بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. آقا نے فرمایا تم اپنے جانور قربانی کے تازہ موٹے فربے کیا کرو، اس لیے کہ یہ پل صراط پر تمہاری سواری بنے گی. قربانی نہ کرنے سے نقصان کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، جس کو قربانی کی طاقت ہے، صاحب حیثیت مالدار ہے، باوجود استطاعت اور قدرت کے وہ قربانی نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہماری عیدگاہ آنے کی اجازت نہیں ہے. جو مالدار صاحب استطاعت قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یحضر مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور عیدگاہ ذبح کرتے تھے. آپ عیدگاہ تشریف لے گئے، وہاں مینڈھا لے جایا گیا اور آپ نے نماز عید کے بعد عیدگاہ ہی میں مینڈے کو ذبح کیا. اس زمانے میں یہ رواج تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں 10 سال کبھی چھوڑے بغیر برابر قربانی کا عمل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینڈا ذبح کرتے تھے. ضحى کبشین عظیمین سمینین اقرعین موجوعین املحین، اس کے 6 صفات تھے. اللہ کے نبی مینڈا ذبح کرتے تھے. دھیان سے سنو، اس لیے مینڈے کی قربانی افضل ہے. پہلے نمبر میں مینڈا. مینڈے اور گھیٹے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. شکل میں مینڈا خوبصورت ہوتا ہے. جو حج عمرے میں گئے ہوں وہاں قربانی پیش کی ہو تو وہ مینڈا، اور یہاں اس کا بدل گھیٹا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مینڈا خریدتے تھے اس کے 6 صفات ہوتے تھے. ایک تو مینڈا ہوتا تھا، بکری نہیں، بھیڑ نہیں، مینڈا کبشین. عظیمین موٹا ہوتا تھا، قد بھی اونچا ہوتا تھا. عظیم کا معنی قد اونچا. سمین پھرما ہوتا تھا.
कद का ऊंचा, जिस्म का मोटा। कद के ऊंचे को अजीम कहते हैं और जिस्म के मोटापे को समीन कहते हैं। कबशैन, अजीमैन, समीनैन, अकरनैन, और वो मेंढा सींगों वाला होता था, सिंगड़े वाला मेंढा होता था, सींग वाला। चार चीजें हो गई। अकरनैन, अमलहैन, मौजूऐन, चित कबड़ा होता था, यानी सफेद और काले ऊन का होता था। अमलहैन, मौजूऐन, और वो खसी किया हुआ होता था। ये अल्लाह के नबी के कुर्बानी के मेंढे के 6 सिफात थे। एक भी मसला समझ में आ जाए तो बहुत है। मेंढा होता था, बड़ा होता था, जाडा होता था, सिंगों वाला होता था। 2 मेंढे, कबशैन तस्निया है, 2 मेंढे खरीदते थे। 2 मोटे होते थे, जाडे होते थे, सिंगों वाले होते थे, कब चितड़े होते थे और खसी होते थे। खसी अलग चीज है और उसके मुकाबले के अंदर खिसांग एक अमल है जो नर जानवरों में किया जाता है, जिससे उसका गोश्त साफ शफाफ हो जाता है। लिहाजा जानवर को खसी कराना चाहिए। यहां उसका रिवाज नहीं है, गुजरात में सूरत, अहमदाबाद में उसका रिवाज है। उससे जानवर मोटा भी हो जाता है और उसका गोश्त भी साफ शफाफ सफेद होता है। तो वो खसी किया हुआ बकरा होता था। ये 6 सिफात के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से अपना दाहिना पैर उस पर रखकर, बाएं पैर उसकी टांग पर रखकर आपने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लाह फतर समावाति वल अर्द हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा तकब्बलहु मिन्नी। एक में ये दुआ पढ़ी। दूसरा मेंढा ज़बा किया, दुआ ये पढ़ी और फरमाया मेरी उम्मत के उन लोगों की तरफ से जो कुर्बानी न कर सके लेकिन कुर्बानी के सवाब से महरूम न रहे, इसलिए पैगंबर ने अपनी उम्मत के उन लोगों की तरफ से जो कुर्बानी नहीं कर सकते हैं लेकिन कुर्बानी के अमल से महरूम न रहे, हमारे नबी हर साल 2 मेंढे ज़बा करते थे, एक अपनी तरफ से, एक कुल उम्मत की तरफ से। इससे यह मसला मुस्तंबत हुआ, एक छोटे जानवर में या एक बड़े जानवर के भाग में कुल उम्मत को इसाले सवाब आदमी कर सकता है। बाद लोग यूं कहते हैं कि जिंदगी में एक मर्तबा कुर्बानी। मैं 2 मसलों की वजाहत करूंगा। पहला मसला यह है, अल्लाह के नबी ने कुल उम्मत की तरफ से एक बकरा ज़बा किया है मेंढा, लिहाजा उम्मत कुल उम्मत की तरफ से एक बड़े का भाग रख ले या एक छोटे जानवर को ज़बा कर दे और पूरी उम्मत की नियत कर ले, अल्लाह के नबी के अमल से साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक मेंढा कुल उम्मत की तरफ से ज़बा किया। तीसरा मसला यह साबित हुआ, जब नबी ने उम्मत को याद किया है तो उम्मत पर भी फर्ज है कि अपने नबी की मोहब्बत में अपने नबी के लिए कुर्बानी करे, सवाब तो उसको पहुंचेगा। ठीक एक रिवायत आप ऐसी भी देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मेंढा ज़बा किया और अपनी तरफ से और कुल उम्मत को सवाब पहुंचाया। तो आपने अपनी तरफ से ज़बा किया लेकिन सवाब कुल उम्मत के हक में पहुंचाया, लिहाजा एक छोटे जानवर में या एक बड़े जानवर के हिस्से में कुल उम्मत की नियत कर सकते हैं। यह तो अल्लाह के नबी का अमल है। हज्जतुल वदा हुआ, यमन से ऊंट आए थे, अल्लाह के नबी ने 100 ऊंट खरीदे। 100 हजरत अली और अल्लाह के नबी ने 63 ऊंट अल्लाह के नबी ने अपने दस्ते मुबारक से ज़बा किए। जिस ऊंट की बारी आती थी हर ऊंट मुश्ताक रहता था कि नबी के कदमों में मैं कुर्बान हो जाऊं। हालांकि ऊंट को ज़बा करना मुंह में फेणे आ जावे कोई मामूली काम नहीं है।
اونٹ ذبح کرنا اس میں نہر کیا جاتا ہے، ذبح نہیں کیا جاتا. عربی لینگویج میں جامعیت ہے. ذبح حلقوم، مریخ اور وجان کو کاٹ دینے کا نام ہے. بسم اللہ اللہ اکبر، حلقوم، مریخ اور وجان کو کاٹ ڈالو، ذبح ہو گیا. نہر، اونٹ کے اگلے دو پیروں کے درمیان میں نیزہ بھونک دینا، اندر نیزہ گھسا دینا، دونوں پیروں کے بیچ والے حصے میں، اس کو نہر کہتے ہیں. یہ اونٹ کی ذبح کا طریقہ ہے. گائے، بیل، بھینس، بکری، بکرا، دمبا، دمبی، گھیٹا، گھیٹی، اس کے ذبح کرنے کا طریقہ وہ ہے کہ مریخ، وجان اور حلقوم کٹ جائے، یہ جانور ذبح ہو جاتا ہے. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ، ہر سال صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے. ابو داؤد شریف کی روایت، ہر سال. لہذا بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے زندگی میں ایک مرتبہ حج ہے، زندگی میں ایک مرتبہ قربانی. غلط ہے. ہر انسان پر، مالدار پر ہر سال قربانی واجب ہے. لہذا ہر سال قربانی کرنی چاہیے. جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی، امت کو بھی اللہ کے پیغمبر کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے. دوسری بات، قربانی کے دن سب سے مقبول عمل قربانی ہے. انسان اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے زندگی کھپا دیتا ہے کہ میں اللہ کا مقبول بندہ بن جاؤں. صحابہ پوچھتے تھے دلنی علی عمل، اللہ کے نبی کوئی مقبول عمل بتاؤ. صحابہ کی یہ جستجو رہتی تھی. یہاں گارنٹی ہے کہ قربانی کے دن قربانی مقبول عمل ہے. اب آدمی ایک پر بس نہ کرے. نبی نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے. یہ بھی مالداروں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے. ایک قربانی کر لی بس ہو گئے. پورے گھر کی طرف سے نہیں، ماشاءاللہ گھر کی طرف سے سب کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ایک اور اصلاح کی بات یہ بھی سمجھو، یہ مقبول عمل ہے اور مقبول عمل کے لیے کائنات تڑپ رہی ہے. کوئی مقبول عمل اللہ کے یہاں اگر پتہ چل جاوے تو اس کو کرتے رہیں، اور اس مقبول عمل پر انسان خاتمہ چاہتا ہے تو اللہ کے یہاں قربانی کے دن سب سے مقبول عمل اور جانور کے خون بہانے سے افضل عمل اس دن کوئی نہیں. لہذا ایک آدمی اپنی طرف سے 10 بکرے بھی کر سکتا ہے، ایک آدمی اپنی طرف سے 50 بھی کر سکتا ہے. اللہ کے یہاں یہ مقبول عمل ہے. بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کی طرف سے کیا قربانی کرنے کی، اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے قربانی. دیکھو یہ عمل مقبول ہے اور مرنے والوں کو مقبول عمل پہنچایا جاتا ہے. یاسین پہنچاتے ہیں، قرآن پہنچاتے ہیں، صدقے پہنچاتے ہیں. وہ قبول ہوئے کہ نہیں کون جانتا ہے، لیکن یہ تو قبول ہے. بعض شیطانی ذہن رکھنے والے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کا مائنڈ خراب کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بڑی مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کہاں ثابت ہے؟ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے حج ثابت ہے، مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مالی تصدق ثابت ہے، مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے نفل پڑھ کر بخشو ثابت ہے، تسبیح پڑھو ثابت ہے، درود شریف پڑھو ثواب پہنچاؤ ثابت ہے. بڑی قربانی ثابت نہیں ہے، بلکہ اس دن یہ مقبول عمل ہے. اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے آدمی چھوٹا یا بڑے میں حصہ رکھ کر کے ضرور قربانی کرے. اس سے ان کو زبردست فائدہ ہوتا ہے اور قبر میں ان کی مغفرت ہو جاتی ہے. اس لیے کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے اور جس کی طرف سے کرائی گئی اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. یہ چند اصلاحی باتیں. نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی واجب نہیں، لیکن کریں تو بہت بڑا ثواب ملے گا. البتہ نابالغ کے مال میں سے نہ کرے، بالغ اپنے مال میں سے کرے، یعنی گھر کا بڑا اپنے مال میں سے کرے. بڑی نابالغ کا مال کون ہوگا؟ چھوٹے بچوں کے لیے پیدائش سے لے کر کے بڑے ہونے تک کچھ پیسے ہدیے آتے ہیں. ہدیے
छोटे बच्चे, किसी के यहाँ बच्चे की विलादत हुई तो रिश्तेदार 5, 10, 50, 100 देते हैं, अब माँ बाप वापस डालते हैं। ये खयानत है, ये नाजायज है, ये औलाद के साथ बहुत बड़ी दगाबाजी है। ये तुम्हारा नहीं है, देने वाले ने बच्चे को दिया है, इसको इस्तेमाल माँ बाप नहीं कर सकते। ये बच्चे का माल है, उसको अलग रखो डब्बे में। फिर सगाइयों में आता है, शादियों में आता है गिफ्ट, ये बच्चे का है। जवान होने तक जितना आया उसको महफूज रखो। अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चे जवान होने पर साहिब निसाब हो जाते हैं। कई माँ बाप बहुत बेहतियाती करते हैं, वापर डालते हैं। ये बच्चों के माल में खयानत हुई। अंतउद्दुल अमानात इला अहलिहा, अमानत अमानत वालों को पहुंचानी चाहिए। देने वाले ने बच्चे को गिफ्ट किया है, ये हदिया बच्ची का है या बच्ची का है, तो बच्चे और बच्ची का गिफ्ट ये माँ बाप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और नाबालिग है तो उनको उससे कुर्बानी न करने दो। अलबत्ता बालिग होने के बाद ये निसाब को पहुंच गया तो वो अपने इसी माल में से पैसे निकालकर कुर्बानी करे। कुर्बानी किस पर वाजिब है? जिस पर ज़कात वाजिब है अपने माल के निकालना, उस पर कुर्बानी की भी वाजिब। कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी का पहला दिन 10 ज़िलहज्जा, नमाज ईद के बाद शहरों में और गांवों में सुबह सादिक के बाद। नमाज कुर्बानी का टाइम शहरों में जहां ईद होती है वहां नमाज ईद के बाद, चाहे शहर में किसी एक जगह भी ईद हो गई, दूसरी जगह के लोगों ने ईद पढ़ी नहीं, बाद में पढ़ेगा, लेकिन एक जगह ईद हो गई, मान लो 7 बजे ईद हो गई, अब ये ईदगाह 8 बजे पढ़ने जाएगा तो 7 बजे जुम्मा मस्जिद में हो गई दाखिला तरीके या गांव में हो गई, तो इसने बकरे को छुरा फिरा करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके ज़बा करके उतारने के लिए दूसरों को दे दिया, कुर्बानी हो गई। शहर में एक जगह ईद की नमाज हो गई, शहरों में सबके लिए कुर्बानी हलाल जायज। गांवों में सुबह सादिक के बाद, नमाज फजर के बाद वक्त से कुर्बानी कर सकते हैं। अलबत्ता हमारे यहाँ जो रिवाज है ईद के दिन शहरों में नमाज ईद अदा करने का, ये टाइम शुरू हुआ 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा की मगरिब से पहले पहले तक कुर्बानी कर लेनी चाहिए। ये तो वक्त हो गया। कुर्बानी के दिनों में जिसके पास निसाब के मिकदार माल है उसको अपने माल से कुर्बानी का जानवर खरीदकर कुर्बानी करनी चाहिए। कुर्बानी का जानवर कुछ पहले खरीद ले, उसकी कुछ खिदमत करे, उसको नहलाए धुलाए सफाई करे, अपने हाथ से खिलाए पिलाए। अद्दिमु लहायाकुम फइन्नहा अलस्सलाति मतायाकुम, इसको ताजा मोटा फरमा करने की मेहनत करे। जानवर जमा करे तो उसको खटक होनी चाहिए कि हाँ ये मेरा जानवर चला गया, यानी इसके दिल में एक एहसास होना चाहिए। ये तो बाजार में से लिया जमा कर दिया ने मसला खा लिया खत्म हो गए। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदगाह ज़बा किया था और उससे गोश्त और हड्डी अलग करके इसको पकाने का हुक्म दिया और अल्लाह के नबी ने उसी के खाने से शुरुआत फरमाई। लिहाजा कुर्बानी का गोश्त खूब खाना चाहिए। अल्लाह के नबी ने उसमें बरकत की दुआ की है और इसी के साथ साथ ये अल्लाह की मेहमानी के दिन है। जब अल्लाह मेजबान है, हम सब अल्लाह के मेहमान हैं और अल्लाह की मेजबानी और जियाफत के लिए जानवर भी कुर्बान हो जाते हैं। वरना इतने बड़े ऊंट को नहर कर देना कोई आसान काम थोड़ा है। इतनी बड़ी ताकतवर भैंस पाड़े को ज़बा कर देना कोई आसान काम थोड़ा है। अल्लाह ताला ने उसको जानवरों को तुम्हारे लिए मुसक्खर कर दिया ताकि तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है। औरत के पास दागीने हैं, बहू के पास दागीने हैं, बेटी के पास अपना पर्सनल माल है और वो बालिग है, मुकीम है, मुसाफिर नहीं है। सब मुकीम है, मुसाफिर पर नहीं है, मुकीम है, आज़ाद है, बालिग है, मुकल्लफ है, साहिब निसाब है। मर्द की तरफ से भी औरत की तरफ से भी हर एक पर कुर्बानी वाजिब है। हर एक को अपनी कुर्बानी की नियत करनी पड़ेगी। जब हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास माल था, अल्लाह के नबी ने हजरत फातिमा की तरफ से जानवर खरीद करके ज़बा करवाया
اور فاطمہ سے کہا اپنی قربانی کے جانور کے ذبح کے وقت وہاں کھڑی رہو، اس لیے کہ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرانے والے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اگر محرم رشتہ دار ذبح کرتا ہے تو بغیر پردے کے عورت کھڑی رہ سکتی ہے، لیکن قصائی غیر محرم ہے اور عورت کو قربانی دیکھنی ہے تو وہ قصائی محرم غیر محرم کا پردہ کر کے اپنے جانور کی ذبح کو دیکھ سکتی ہے۔ اس کا ثبوت اس واقعے سے ہے۔ یہ سب مستدلات قرآن اور سنت سے ہیں، ایک دم واضح انداز میں، لہذا بہت ہی فطیبوا بہا نفسن، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کا جانور تازہ موٹا فرما تگڑا خریدے، کوئی عیب نہ ہو اس میں۔ آقا نے فرمایا اس کا کان ٹٹولو، اس کی دم چیک کرو، اس کے ٹانگیں دیکھو، کوئی عیب تو نہیں ہے، کان کٹی ہوئی نہ ہو۔ کان اگر چیر دی ہے بیچ میں سے، جیسے غیر مسلمین جانور پالتے ہیں تو ان کا مذہبی عقیدہ ہے کان چیرت ڈالتے ہیں۔ مشکوکۃ الاذنین کوئی مسئلہ نہیں، اگر دو پھاڑے بھی ہو گئے کھڑے پھاڑے کوئی سمجھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کاٹا ہے اس کو، چیرنا الگ ہے، کاٹنا الگ ہے۔ کاٹنا ہے تو 1/3 سے کم ہو تو چلے گا، 1/3 ہے 1/3، جیسے یہ انگلی کے 3 بوٹکے ہیں، یہ ایک کٹ گیا قربانی میں نہیں چلے گا، تیسرا بھاگ کٹ گیا اس کا، چوکھا چوکھا مسئلہ۔ اس سے کم ہے کان کٹا ہوا، پچھڑی کٹی ہوئی، 1/3 سے اوچھی کٹی ہے، چلے گا، لیکن اگر 1/3 ہو گیا اب یہ نہیں چلے گا۔ خود ایک مفتی ہے، ہر ایک انسان سمجھ لے موٹے موٹے مسئلے، یہی سیم مسئلہ کان کا بھی ہے، یہی سیم مسئلہ پچھڑی کا بھی ہے۔ آچر کے مسئلے الگ ہے، اگر 4 آچر والے مادہ کے 2 آچر میں سے دودھ سوکھ گیا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی، اس طرح 2 میں سے 1 ختم ہو گیا اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ سینگڑی کا مسئلہ یہ ہے، اگر کھول ختم ہو گیا ہے، جڑ سے ہے باقی، گھیٹے عام طور پر لڑتے ہیں، اس کے سینگ ختم ہو جاتے ہیں تو 2 پرکار کے ہوتے ہیں، جڑ سے باقی ہیں، خالی کھول اکھڑ گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر جڑ سے سنگڑا اکھڑ گیا ہے تو یہ جانور قربانی میں نہیں چلے گا۔ لہذا تمام تر عیوب سے سلامت جانور دیکھیں، کوئی عیب اس میں نہیں ہے۔ بہت لاغر، دبلا پتلا، لنگڑا لولا، اپاہج معذور، یہ جانور قربانی میں نہیں چلے گا۔ ٹھیک اسی طرح اندھا جانور ہے، وہ بھی قربانی کے اندر استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تمام تر عیوب سے سلامت ہونا چاہیے، صحیح سالم عیوب سے، اس لیے قربانی کے جانور کو خریدنے والا ماہر تجربہ کار ہو اور وہ ٹٹول کر کے جانور خرید کر کے لے آئے۔ رسوڑی جانور کو ہوتی جو ہے الا ماشاءاللہ، کبھی گردن میں رسوڑی، کبھی کان پر رسوڑی، کبھی پچھڑی میں رسوڑی، کبھی پیر میں رسوڑی۔ تو رسوڑی کے 2 پرکار ہے، ایک سوکھی رسوڑی ہوتی ہے، گاٹھ، کوئی مسئلہ نہیں، لیلی گاٹھ ہے رسوڑی اور اس میں سے رسی نکلتی ہے اور اس سے گوشت متاثر ہو رہا ہے تو اب یہ قربانی میں نہیں چلے گا۔ یہ موٹے موٹے مسئلے میں نے ذکر کر دی، لہذا آئندہ قربانی کا پس منظر اور سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم یادگار، اس کا تذکرہ کیا جائے گا، ذبح کا طریقہ۔ سماج نے مارکیٹنگ یارڈ کے سامنے پچھلے سال جو حسین بھائی کووریا، ابراہیم بھائی کووریا مرحوم کی جو جگہ ہے، ان حضرات نے سماج کو وہاں استعمال کرنے کے لیے اجازت دی ہے، تو جانور وہی مارکیٹ لگے گی۔ یہ اس پیٹرول پمپ سے لے کر کیشوت سے والے پیٹرول پمپ بائی پاس سے لے کر کے ویراول بائی پاس سے آگے پیٹرول پمپ تک یہ جو روڈوں پر جانور کھڑے کر دیے ہیں، یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل ویرودھ ہے۔ ہم اپنی منڈیوں میں جانور بیچ سکتے ہیں،
रोड पर मंडी लगाने की इजाजत किसी को नहीं है। बेचने वाले को चाहिए कि मंडी मार्केट में हो, मंडी और मार्केट में जानवर की बेचान खरीद हो। इससे कुर्बानी की हकीकत क्या है? बड़ी अजीब हकीकत। आदमी अपने माल को अल्लाह के लिए लगाकर अहद कर रहा है, ऐ अल्लाह मैं ख्वाहिशात को तेरे ऊपर लगाऊंगा, मैं मेरी जान की बाजी लगाने की जरूरत पड़ेगी तो लगाऊंगा। और अपनी कुर्बानी के लिए किसी की दिल आजारी नहीं होनी चाहिए। हम कुर्बानी करें, किसी को तकलीफ हो, लिहाजा हमारी मंडियों में, हमारी मार्केट की जगहों में जानवर का बेचान खरीदो। खरीदने वाले वहां जावेद नहीं तो बेचने वाले के वहां जगह बदल कर उनको जगह पे बदलनी पड़ेगी और बेचने की जगह में उनको जाना ही पड़ेगा, इसलिए कि माल निकालना है। हम जानवर दूर से लाने वाले साथियों का शुक्रिया भी अदा करते हैं। जितनी बड़ी मार्केट यहां लगती है सौराष्ट्र में, शायद पहले नंबर की मार्केट यहां लगती है। यानी कसरत से जानवर जो यहां फरावानी जानवर की है, वो 2-2 महीने पहले से जानवर लाना शुरू किए हैं लोगों ने। इनका चराना, इनके चारे, इनके पानी, इनके आदमी, इनके मजदूर, बहुत बड़ा खर्च लगा है। लेकिन कमाने की बहुत सी राहें हैं। आदमी कमाता है, कमाना भी चाहिए, नुकसान करके धंधा करना ही नहीं है। ये तो इस्लाम का ज़ाब्ता है। बड़ी नुकसान उठाकर थोड़ा धंधा करेंगे, लेकिन इतनी भी तो रियायत करनी चाहिए कि इसी एक में कमाने ही लेने का है। अल्लाह के बंदों को सहूलत हो, हम जानवर दूर से लाए हैं, हमारे पैसे निकल गए, हमारा मेहनताना निकल गया, अल्लाह की मेहरबानी के दिन है, हम अल्लाह के आले बन जाएंगे, हम अल्लाह के काम में अल्लाह के मददगार बन जाएंगे। क्या हो गया अगर एक पाडे में 5,000 2,000 नहीं कमाए, 500 कमाए, दे दिया, कोई कुर्बानी करेगा खुशी खुशी, उसकी खुशी हमारे लिए सवाब और मगफिरत का बाइस बनेगा। इतनी ज्यादा कीमतें न लगाओ। अरे मैक्सिमम गोश्त मन के 3500 रुपये हैं, चलो 4,000 रुपये हैं, तो 5 मन का जानवर 4 पंचाने 20,000। लेकिन अभी देखो 50,000 भाव है, 30,000 भाव है, और लोग अभी से डराते हैं हिस्से वाली कुर्बानियों को। देखी ने भाव बार पार जो हो, कोई फिक्र की बात नहीं, हलाल तय्यब है। अल्लाह की जियाफत का दिन है, खुदा आज तक इंतजाम करता रहा है और कयामत तक करेगा। लिहाजा किसी के डराने में हम डरने वाली कौम नहीं, लेकिन हम एक दोनों तरफा बात कर रहे हैं। नुकसान उठाकर धंधा मत करो, लेकिन अल्लाह की मेहमानी के दिनों की लाज रखो और इसी में कमा मत लो। सेम मातदिल मिजाज रखो। कमाने के बहुत सी राहें हैं और खुदा वो राहें खोलेगा कि इंसान के तस्वुर में भी नहीं होगा। एक मर्तबा करके देखने की बात है। लोग मेरे बाप इधर उधर की बातें बहुत करते हो गए, लेकिन मैं आपको खुलासा सुनाता हूं। मैंने जिंदगी के तजुर्बात 35 साल के हैं, कमाने की बहुत सी राहें हैं, और अल्लाह के लिए जियाफत के दिन में खुदा के आले बन जाओ तो खुदा वो राहें खोलेगा कि इंसान का तस्वुर काम नहीं करेगा, और वो बरकतों से नवाजेगा। वहां से बरकतों के खजाने उगलेंगे कि इंसान का दिमाग काम करता बंद हो जाएगा। लिहाजा मुनासिब भाव रखो। 4,000 तो बहुत हो गए, दूसरी जगहों में तय हो गया 600 रुपये किलो बकरा कच्चा, जैसे मुर्गी की बेच होती है 70 रुपये 60 रुपये में कच्ची मुर्गी किलो जाती है। फिर वो 120 में 200 में 300 में गोश्त बेचते हैं, 100-125 रुपये में कच्चा। अभी मार्केट में बकरा भी जिंदा बिकता है, अक्खा बकरा जोख लेते हैं किलो के 600 रुपये, ये भी बहुत सस्ता है। अब आदमी 20 तक 200 10,200 का 20 किलो का बकरा बहुत शौक से लोग खरीदते हैं। एक आदमी ने कहा मेरे पास 70 बकरे हैं और मैं इसी तरह बेचता हूं, क्या ये बे मेरे लिए जायज है? मसला पूछा तो 1 किलो के 600 रुपये, जीवतो बकरो जो किलो बनो जितना किलो अटला 600, बहुत सस्ता है, कोई महंगा नहीं है। मार्केट की उन बोलियों से जो लाख 2-2 लाख 4-4 लाख 5-5 लाख
गोश्त खाने के काबिल होना चाहिए और इंसान उसको पकावे तो गल जावे। अल्लाह के जियाफत के दिन में, जैसे हम अपने यहाँ खुशियों के दिनों में कैसा गोश्त बनाते हैं, ऐसा गोश्त। तो एडवांस में मैंने ये मसले इसलिए जिक्र किए कि अभी 10 दिन है और 10 दिन में हम जानवरों की खरीदारी करते हैं, लिहाजा खरीदारी के मुतालिक मोटे मोटे मसले जिक्र कर दिए। और कुर्बानी की मिकदार बढ़ाओ, नहीं है तो सेटिंग करके भी कुर्बानी करो, कुछ भी करके कुर्बानी कर डालो, इसकी बरकत से खुदावंद कुद्दूस साल भर नवाजेगा। हमारे यहाँ तरीका है, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल उसकी मिकदार बढ़ती रहती है, इसमें और इजाफा होना चाहिए। तंगदस्ती दूर करनी है, कुर्बानी करो। बहुत बड़ा सवाब हासिल करना है, कुर्बानी करो। पुलसिरात की सवारी बनानी है, कुर्बानी करो। ईसान करना है, कुर्बानी करो। गरीबों की हमदर्दी करनी है, कुर्बानी करो। उनकी हर रौ के बदले के अंदर नेकी हासिल करनी है, कुर्बानी करो। और एक नेकी का सवाब 70 नेकी के बराबर है। खाली एक नेकी नहीं मिलेगी, जानवर के बदन की हर रौ के बदले में एक नेकी 70 नेकी के बराबर है। तो कितनी बड़ी नेकी इंसान कमाएगा। और ये कुर्बानी के अलावा मयसर नहीं, जिहाद को छोड़कर। आज बहुत बड़ा दिन है, जुमा भी है और जिलहिज्जा की पहली तारीख भी है। अल्लाह ने कसम खाई है इसकी। आइंदा हमारे यहाँ के हिसाब से शनिवार 9 तारीख पड़ेगी, कल शनिवार नहीं, इसके बाद जो अरफा का दिन होगा। इस साल अकबरी हज है, हज भी है और जुमा भी है, इसलिए उसको अकबरी कहते हैं। यानी एक हफ्ते की ईद और एक सालाना अरफा, लिहाजा सवाब बढ़ जाता है हुज्जाज किराम का। जिनकी किस्मत में खुदा ने मुकद्दर कर दिया था पहुंच गए। हमारे यहां से भी काफी लोग तशरीफ ले गए हैं। तो जुमा को अरफा है और अरफा हज अकबर है, लिहाजा इसको हज अकबर कहा गया है। बहुत बड़ी कबूलियत का दिन है। हमारे यहाँ आज पहली तारीख के हिसाब से 10 ज़िलहिज्जा, आइंदा जुमा के बाद शनिचर के बाद की इतवार से ईद शुरू होगी। खास तौर पर हमारे यहाँ हुकूमत सूबाई गुजरात के ममनू जानवरों का इस्तेमाल न करे, खामों का परेशानी में मुब्तला न हो। ये पूरे हिंदुस्तान में कायदा लागू नहीं है। वेस्ट बंगाल के अंदर, कलकत्ता में, बिहार में लाइसेंस है। जो गुजरात में ममनू है उनके लाइसेंस हुकूमत ने जारी किए। वहां कुर्बानी भी होती है, बाजार ओपन होता है, भाव निकलते हैं। हिस्से वाली कुर्बानी हमारे यहां हर साल 3 आदमी जाते हैं, जानवर खरीदते हैं। देहातों के देहात मुसलमानों के भरचक है, गुर्बत बहुत है। सालाना गोश्त खाने के दिन होते हैं। पूरे पूरे देहात झोपड़ों वाले, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 20, किसी में 25 जानवर खरीद कर दे दिए। पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह 350 बड़े जानवर वहां ज़बा हुए थे और 100 यहां हुए थे। तरतीब यह होती है वहां की, 1300 रुपये में एक हिस्सा लिखा जाता है। 9100 में पूरा का पूरा 1 रुपया खर्च किए बगैर जानवर के पीछे लगाते हैं। वहां न कटिंग का खर्च आता है न चारे का खर्च आता है। तरतीब यह होती है 25 जानवर खरीद कर एक गांव को दे दिए। वहां के लोग बड़े दीनदार समझदार, कुर्बानी की बहुत कदर करते हैं, जानवर की खिदमत करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, चारा डालते हैं। फिर हर घर से 2 आदमी आते हैं, ज़बा भी करेंगे, गोश्त के ढगले करेंगे। जितने घर इतने ढगले, और हर घर में वो ढगले तकसीम होंगे। इसमें बराबर सराबर कलेजी भी, पाए भी, सब कुछ इसमें जाएगा। ये आंखों देखे हालात पिछले 7 बरस से साथी जाकर के इस तरह तकरीबन पिछले साल भी निजाम हुआ, हर साल वहां निजाम होता है। तो वहां का एक हिस्सा 1300 रुपये का है। यहां हमने 3000 रखे हैं एक हिस्से के, तो 7 तेरी ने 21,000। तो मिनिमम जानवर खरीदा जाएगा 18 से 19 के दरमियान, या मैक्सिमम 19.5 तक खरीदेंगे। 1100 रुपये जानवर जमा करने वाला कसाई ले जाता है,
2-3 दिन पहले खरीदारी होती है तो चारा डाला जाता है, चारा खरीदना ही पड़ता है। जानवर साचवने वाले आदमी का मेहनताना होता है और जानवर को कुर्बानी गाह तक पहुंचाने का 1 हफ्ते 10 दिन की ये खिदमत का माहौल, पानी भी खरीद करके पिलाना पड़ता है। उसके पीछे खर्च 1000 रुपया मैक्सिमम सोचा जाता है, या 1500 से 1700 रुपये खर्च निकाल कर फिर जानवर खरीदा जाए। कोई साथी अपनी तरफ से चारा दे दे, वो शादो नाजिर होता है। मसलन 5 रिक्शाएं खरीदी, किसी ने 1 रिक्शा दे दी, वरना 4 तो खरीदनी पड़ती। इस तरह का निजाम होता है। हर 2 दिन में पानी का टैंकर खरीदा जाता है। इस तरह यहां आंखों के सामने कुर्बानी का निजाम होता है। हम एहतियात के साथ कुर्बानी करें। बड़े बड़े शहरों में जहां जगह कत्ल खाना नक्की है, वहां कुर्बानी करने का ऑर्डर दिया है। हमारे यहां इस साल भी ये ऑर्डर नहीं है, लेकिन हमें एहतियात करना चाहिए। कुर्बानी जाहिर जगह में न करे। गैर मुस्लिम का मकान करीब में है तो उसकी देखते हुए हम कुर्बानी न करें। बहुत एहतियात से काम ले। खून वाले कपड़े पहन करके बाजार में न निकले कसाई। वगेड़ा, छुरे, कुल्हाड़ी, ये सारी चीजें लेकर के साइकिल के या स्कूटर के कैरियर पर डाल करके न निकले। इनको पर्दे में छुपाकर इस्लाम की अजीम तरीन तालीम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई छुरी या चाकू मांगता है तो उसको मयान में डाल करके दो। तलवार मांगी, मयान में डाल कर दो। हो सकता है लेने देने में वो गिर गई और तुमने जिसको दिया उसको जख्मी तुमने कर दिया। जिस मजहब में हथियार लेने देने का तरीका ये हो, उस मजहब में अगर किसी की दिल आजारी करके कुर्बानी की जाए तो कुर्बानी अल्लाह के यहाँ पहुंचती नहीं है। वो कुर्बानी अल्लाह के यहाँ पहुंचती नहीं है। मक्का के मुशरिक भी करते थे। जानवर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर हरम में जमा किए और खून के खोपचे भर करके बैतुल्लाह की दीवार पर छांटते थे और बोटी की और बोटे यूं बैतुल्लाह की दीवार पर चिपकाते थे। कुरान उतरा, नहीं यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह को तुम्हारी मेरे घर पर बोटियां चिपकाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे खून छिड़कने की जरूरत नहीं। वल्लाकि यनालुहु तक़वा मिनकुम, खुदा के खौफ के साथ जितनी भी तुम कुर्बानी करोगे वो अल्लाह कबूल करेगा। आइंदा इस सिलसिले में मजीद कुर्बानी की हकीकत और उसकी तारीख और ज़बह का तरीका वगैरह जिक्र किया जाएगा। दारुल उलूम के अंदर जो कुर्बानी करवाना चाहते हैं वहाँ एक भाग के 3500 रुपये रखे हैं। श्रीनगर की तरफ से हर साल यहाँ कुर्बानी होती है, एक भाग के 3000 रुपये रखे गए हैं यहाँ। और अगर कलकत्ता और बंगाल में कुर्बानी कराना चाहते हैं, हमारे 3 असातिज़ाए किराम वहाँ 1-2 दिन में पहुँच रहे हैं। जानवर की खरीदारी और ये तरतीब मैंने आपको बताई, इस तरतीब से वहाँ कुर्बानी के जानवर खरीद करके कुर्बानी की जाती है। वहाँ एक भाग के 1300 रुपये रखे गए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए और आलम इस्लाम के लिए कुर्बानी के अमल को आसान फरमा दे। हर तरह के खलफशार इख्तिलाफ फितने से अल्लाह ताला कुल उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। ये मदरसा दारुल कुरान सिद्दीकिया थाना भवन के करीब यूपी में है, मुस्तहिल इदारा में 25 लाख का खर्च है। ज़कात लिल्लाह सदका खैरात के ज़रिए से ताआवुन फरमाए। बुजुर्गों, मुल्क के हालात आए दिन कशीदा होते चले जा रहे हैं। ये बड़े दिन में हर दुआ कबूल होती है, हर नेकी 700 नेकी के बराबर होती है। हर नेकी, हर रात लैलतुल कदर के बराबर है। मुसलमान थोड़ी सी गैर कानूनी चीज कर लेता है, जैसे हुआ राजस्थान के उदयपुर में होने वाले इस मसले को इस्लामी कानून के खिलाफ, मुल्क के कानून के खिलाफ, मुल्क में कशीदगी पैदा होगी, बड़े दिन शुरू हो गए, नफरत पैदा होगी। क्या फायदा हुआ? शहर की मस्जिदों में आग लगा दी गई। सोचना चाहिए मुल्क के मौजूदा पुरखतर हालात, ये जज्बात पूरे करने का वक्त नहीं। इस्लाम एक ज़ाब्ता और मुकम्मल कानून
हयात अबदिया इंसानियत के लिए। ये जज्बा पूरा कर लेने का नाम इस्लाम नहीं है। और दुनिया में खल फसार फितना जहां जख्म रुजने के करीब होता है कि फिर नस्तर लग जाता है। लिहाजा सोचो, दुआ भी करो। कोई गैर कानूनी और इस्लामी कानून के खिलाफ वर्जी करके अपने जज्बात के पूरे करने का नाम इस्लाम नहीं है और ये मुसलमानों के काम नहीं है। लिहाजा हम कड़े लफ्जों में उनके निंदा करते हैं और ये हरकत मुल्क की सालिमियत को खतरा पैदा कर सकती है। लिहाजा जो चीज मुल्क की सालिमियत के लिए खतरा है, इन चीजों से इज्तिनाब करना चाहिए। कुर्बानी के दिनों में भी बहुत एहतियात से काम लें। जानवर की खरीदारी से लेकर के कुर्बानी के खत्म तक मुहतात तरीका इख्तियार करना बहुत जरूरी है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कमा यलीकु बिजलालि अज़मतिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु मिल्अस समावात व लकल हम्दु मिल्अल अर्द व लकल हम्दु मिल्अ मा शि'त मिन शैइन बअदु। या हन्नानु या मन्नान, या हन्नानु या मन्नान, या हन्नानु या मन्नान, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम। या हय्यु या क़य्यूम, या रहमान या रहीम, या गफ़्फ़ार या सत्तार, या वहाब या अज़ीज़ या अल्लाह। अल्लाहुम्मा अंत इलाही व इलाह कुल्लि शैइन इलाहा वाहिदा ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ। अल्लाहुम्मा अस्क़िना, अल्लाहुम्मा अस्क़िना, अल्लाहुम्मा अस्क़िना, अल्लाहुम्मा अस्क़ि इबादक व बहीमतक वंशुर रहमतक व अह्यि बलदकल मय्यित। ऐ अल्लाह, हम तमाम कायनात में बसने वाले इंसानियत को हिदायत नसीब फरमा, गुमराही से हिफाजत फरमा, आपकी मारिफत का नूर अता फरमा। इस बस्ती पर खुसूसी रहमतें नादिल फरमा, अनवार और बरकत से माला माल फरमा, शर्र और फसाद से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, आपका बड़ा एहसान और करम है कि सन हिजरी 1443 के इस महीने में आपने ज़िलहज्जा में पहले अशरे में 2 जुमे नसीब फरमाई है। ऐ अल्लाह, जिसकी हर नेकी 700 नेकी के बराबर है, जिसमें तस्बीह तहलील तकबीर का हुक्म है, हर रात पर लैलतुल कद्र के इबादत का सवाब मिलता है। ऐ अल्लाह, ये मौका बहुत कम मिलता है कि पहले अशरे में 2-2 जुमे आपने दी हो और इसमें हज अकबर भी आपने अता फरमा दिया। तुझसे लेने का ये बहुत कीमती ज़माना है जिस तक आपने अपने फजल से हमें पहुंचाया है। अल्लाह, अशराए ज़िलहज्जा से हमें पूरे फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, बहुत बड़ा दिन है, इस्लाम का एक इनक़लाबी तारीख़ी दिन है। अल्लाह, जुमा है, ज़िलहज्जा की पहली तारीख। दुनिया के चप्पे चप्पे कोने कोने से तेरे परागंदा परवाने तेरे हरम में पहुंच चुके हैं। ऐ अल्लाह, मुल्क बहुत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार किए हुए है। मुसलमान काटा जला जाता है, मुसलमान जलाया जा रहा है, बड़ी मस्जिदों में आग लगाई जा रही है, हमें कुफ्र पर मजबूर किया जा रहा है, हमें शिर्क पर जोर दिया जा रहा है। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी मदद हमसे बहुत दूर हो चुकी है, हमने तुझे बहुत नाराज कर दिया है। जब तू नाराज हो गया है तो तू ऐसे जालिमों के हवाले हमें कर रहा है कि जिनके दिल में रहम का छांटा नहीं है। ऐ अल्लाह, तेरे घरों को मिसमार करने की कोशिश कर रहा है। ऐ अल्लाह, फिर भी मुसलमान टस से बस होने के लिए तैयार नहीं है। इबरत की निगाह उसके अंदर रही है, इसकी सोच को बहुत खतरनाक जहरीला सांप डस गया है, इसकी सोच इंतहाई खतरनाक मजमूम हो चुकी है। ऐ मेरे परवरदिगार, इस मुल्क की दरिंदगीयत को, इस मुल्क की बहीमत को, इस मुल्क की अल्लाह इस्लाम दुश्मनी को और इस मुल्क की इंसान फितरत दुश्मनी को ऐ अल्लाह मुबारक दिन में तुझसे खात्मे की दुआ करते हैं। अल्लाह इन सारी दुश्मनियों को ख़त्म फरमा, इस्लाम का बोलबाला नसीब फरमा, मुसलमानों को तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह, हज भी है,
कुर्बानी भी है, तेरे ही नाम पर किया जाता है। ए मेरे परवरदिगार आसान फरमा दे, इसको कबूल फरमा ले, रहमत की मूसलाधार बारिश अता फरमा दे। अल्लाह हमारी तो पूरी निगाह तेरी जात पर है, तो ही मुश्किल कशा है, तो ही हाजत रवा है। तू आसमान से पानी बरसाता है, उसको जमीन के सांतों में दाखिल करता है। हमारे लिए तो तेरे अलावा कोई है ही नहीं। ऐरे गहरे नथु खेरे का तो कोई भी होगा अपने हिसाब से। ए हमारा परवरदिगार, तू ही मुश्किल कशा है, तू ही हाजत रवा है, तू ही आसमान से बारिश बरसाता है, तू ही जमीन में खेती पैदावार पैदा करता है। अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा। अल्लाह हमारी तिजारत जो तकरीबन खत्म हो रही है, हमारी खेतियाँ अल्लाह जिससे पैदावार में कोई बरकत का निशान लगी है, अल्लाह हमारे बागात जिनके फल खत्म हो चुके हैं, ऐ अल्लाह तेरी रहमत खत्म नहीं होती है, तेरी बरकत खत्म नहीं होती है। हमने तुझे बहुत नाराज कर दिया और तू फरमाता है जब मैं नाराज हो जाता हूँ तो मैं बरकतों को उठा लेता हूँ और इंसान को इंसान का दुश्मन बना देता हूँ। नाराज मौला, तुझे राजी करने के लिए जिलहिज्जा की पहली तारीख में जुमे के दिन में अल्लाह ये मजमा तेरे दरबार में हाजिर है। बहुत नाराज मौला, तू हमसे राजी हो जा, तू हमसे राजी हो जा। हमें दुश्मनों से न कटवा, हमें दुश्मनों से न जलवा। अल्लाह हमारी माआबिद को, इबादत गाहों को, मसाजिद को मिस्मार न फरमा। अल्लाह अब आस्ती नसीब फरमा, मोहब्बत अता फरमा, बदअमली को खत्म फरमा। अल्लाह कुर्बानी के अमल को आसान फरमा। अल्लाह मुल्क की सालिमियत के लिए जो अनासिर खतरा पैदा किए हुए हैं, ए मेरे परवरदिगार तू ही उनकी तरफ से किफायत कर सकता है। हम तो कमजोर है, बेबस है, ए अल्लाह बेइख्तियार है। ए मुख्तार कुल मौला, तेरे इख्तियार में कायनात के सारे इंसानों के कलूब है। अल्लाह सबको हिदायत पर फेर दे, सबको अमन आश्री की तरफ फेर दे। अल्लाह बहुत से लोग बीमार हैं, हॉस्पिटलों में लंबे वक्त से है। अल्लाह खेलती कूदती जिंदगियां ए मेरे परवरदिगार इंतहाई खतरे पर लग चुके हैं, जिनके सांस रुक रहे हैं, जिनकी आवाजें बंद हो रही है। ए मेरे परवरदिगार, खिदमत करने वाले बदाहिर कमर टूट चुकी है इनकी। ए मेरे परवरदिगार, लंबी बीमारियों में बिस्तर पर सिसकने से ए मेरे रब तू हिफाजत फरमा ले, सेहत आफियत तंदुरुस्ती सलामती नसीब फरमा दे, परेशानियां हैं खत्म फरमा दे। ऐ अल्लाह, औरतों की आजादी के फितरे बहुत खतरनाक हो चुके हैं, घर घर बेहयाई का अड्डा बैठ चुका है। मेरे परवरदिगार, मोबाइल की लानत ने हमारी बेटियों को अय्याशी में मुब्तला कर दिया है। यार गैर लत्तू खैरे के साथ भी चली जा रही है, बाप की कब्र तोड़ दे रही है, खानदान के इज्जतों की दिवालियां निकालती है, कुफ्र को खुश करने के मौके फराहम करती है। ऐसी औलाद के मुकाबले में बांझ रहना बेहतर है। अल्लाह, ऐसी औलाद के मुकाबले में बांझ रहना बेहतर है। काश मुसलमान वो दिन न देखते कि जिनकी नानी मुसलमान, जिनकी नानी मुसलमान, जिनका बाप मुसलमान, जो हलाल नुत्फे से पैदा हुई अल्लाह मंदिर के घंटे बजा रही है, वो काफिर का बिछोना बने हुई है। मेरा परवरदिगार, जिस पेट से मुसलमान पैदा होता था, अब वो नामूस काफिरों के लिए चला गया, फिर भी तेरी धरती पर हम खा रहे हैं। मेरे परवरदिगार, ये बेगैरती है। इनकी ख्वाहिशात इतनी तगड़ी हो गई मेरे रब कि मुसलमान से भरती नहीं है, वो काफिरों से भरा रही है। रब, इन औलादों का तो सत्यानाश निकाल दे, जो इस्लाम पर गब्बर है, जिसने इस्लाम को दागदार कर दिया है। ओ मेरा रब, आज तुझसे लेने का टाइम है, तू देने आया है। बहुत बड़ा दीन है, आज तू वापस नहीं करेगा, यकीन है नहीं होगा वापस। मेरा रब, तेरा वादा है। ये दुआ 700 दुआ की हैसियत रखती, एक रद्द कर दे, 2 रद्द, 700 रद्द होगी। नहीं नहीं मेरा मालिक, तू 700 रद्द नहीं करेगा। बड़े जज्बात से हाथ उठाए, गुनहगार है, मुजरिम है, पापी है,
मुंह दिखाने के काबिल हम नहीं है, लेकिन तेरे अलावा तो कोई है ही नहीं। ये फितना तेज होता जा रहा है। कोई दिन सूरज ऐसा तो नहीं होता जिसमें मुसलमान के घर से बेटी भागती रहो। कुफर कितना खुश हो रहा है। मेरा परवरदिगार, बेहतर था तो जमीन के अंदर ले लेता, वो दिन की नौसत हमें न दिखाता। अल्लाह ईमान और सलामती के साथ आखिरत बेहतर बना दे, कबल इसके कि हम फितनों में फंसे। अल्लाह मुल्क में अमन आस्ती सलामती नसीब फरमा, रहमत की मूसलाधार बारिश अता फरमा। यही वो काले करतूत है जिन काले करतूतों की वजह से तो जमीन को तांबे में बदलेगा। जमीन तो यही रहेगी, लेकिन इस पर ये काले करतूत होंगे तो जमीन को तांबे में बदलेगा। ऐ मेरे परवरदिगार, हिदायत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, कुर्बानी के अमल को आसान फरमा दे। अल्लाह, हलाल तय्यब में बरकत होती है, भरपूर फरावानी नसीब फरमा दे। आलम इस्लाम को हिदायत अता फरमा दे। थोड़ी सी भूल पर बहुत बड़ी फितने के फैलने से हिफाजत फरमा ले। हमारी खेतियों की आबादी फरमा दे, शादाबी फरमा दे। तेरे नाम पर, तेरे भरोसे पर दाना डाला है, हमने जमीन को जोता है, बोयाई की है, बिस्मिल्लाह पढ़कर किया है। तेरे नाम से दाना तेरी जमीन में डाला है, तू उससे खेती उगाता है। इसमें मनों और टनों के हिसाब से बरकत पैदा फरमा दे। इन बरकतों से तेरे दीन को पानी पहुंचाने के लिए हमें तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, बीमारों को सेहत शिफा अता फरमा, परेशान हाल भाइयों की परेशानी दूर फरमा, मकरूबीन के कर्ज की अदाई की भी शक्लें पैदा फरमा, औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा, बरहुबीन जो जा चुके हैं करवट करवट मगफिरत फरमा, दर्जात को बुलंद से बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, फिर जो कुछ बीमारी फैल रही है, सेहत शिफाए कामिला दाइमा आजिला मुस्तमिरना नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह, इसमें जमाने के डाकुओं को पनपने का मौका न अता फरमाना, हमारे जमा करदा माल और मता से खेलने का मौका न अता फरमाना, तीब को फलने फूलने का मौका न अता फरमाना। ऐ अल्लाह, नस्ल इंसानी की खिदमत के मौके फराहम करना, अपनी तरफ से अब नाश्ती सलामती और शिफाए कामिला दाइमा आजिला मुस्तमिरना के फैसले फरमा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु की मोहब्बत अता फरमा, अजमत अता फरमा, ताबेदारी नसीब फरमा, रहमत की मूसलाधार बारिश अता फरमा। ऐ अल्लाह, जमीनों में बरकत अता फरमा, कुओं में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, सैलाबों, ऐ अल्लाह, हमारे तमाम तर नदी नालों में बरकत अता फरमा, रहमत की मूसलाधार बरकत वाली बारिशें अपने फजल और करम से अता फरमा। मांगी हुई दुआएं अपने फजल प्यारे आका के हसनात के सदके में कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबिहि व बारिक व सल्लिम बिरहमतिक।